ایک دو چیزیں ہیں جن کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا جو آج بات چیت ہوئی. ایک تو بڑی ہی شرمناک بات ہے کہ بار بار لوگوں کے سیاسی عقائد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس ملک کے اندر ایک بہت بڑا پرسنٹیج ہے جو اولیاء کرام کو، درباروں کو مانتا بھی ہے اور عقیدت کرتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی گناہ کرتے ہیں. یہ جو شرپسندی کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں یہ اس ایک خاص مکتبہ فکر کو انسلٹ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں جو کسی بھی مذہب کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں. اگر کسی کے دماغ میں ایول ہو تو وہ کسی بھی مذہب کو، اس کی ان چیزوں کو کسی بھی بدعت کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے. ضروری نہیں کہ اس کے ماننے والے وہ کرتے ہیں. تو ہمیں اس کے اوپر ان سے کوئی اور پریشانی اس لیے نہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ وہی ٹبر ہے، یہ وہی خاندان ہے جنہوں نے یہ کام سب سے پہلے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ کیا. ان کی تصاویر انہوں نے کس طرح کی تصاویر بنا کے، وہ ساری قوم کو پتہ ہے، مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، انہوں نے پھینکوائیں. اس کے بعد یہ وہی خاندان ہے جنہوں نے جمائمہ خان صاحبہ پر جھوٹے کیسز کیے. یہ وہی خاندان ہے جنہوں نے ہمیشہ اپنے مخالفین کی، خواتین ہو یا ان کی اپنی ذاتی زندگی ہو، ان کے اوپر انہوں نے ہمیشہ بہتان بازی کی، لوگوں کے عقائد پہ کی. کبھی کسی کو کچھ بنا دیا، کبھی کسی کے مذہب کو کچھ بنا دیا، کسی کو یہ قادیانی ڈکلیئر کر دیتے ہیں، کسی کو یہ نامسلم ڈکلیئر کر دیتے ہیں، کسی کو یہودی ایجنٹ کہتے ہیں. یہ ان کا بڑا پرانا کام ہے. لیکن سوال ہمارا یہ ہے کہ انسان تو یہ باتیں کریں، یہ جو خود کوئی شخص سیاسی چڑیل ہے جس کے شر سے نہ ان کے اپنے گھر والے بچتے ہیں، نہ ان کے چچا محفوظ ہیں ان کے شر سے، نہ ان کی پارٹی کے لوگ ان کے شر سے محفوظ ہیں. ایون جو ان کی سائیڈ کے صحافی ہیں بیچارے، کبھی اگر آزادی کا ایک ٹویٹ کر بیٹھے ہیں تو ٹویٹر کے اوپر ہی جو شرپسندی ان کے ساتھ یہ کرتی ہیں، نہ ان کے والد ان سے محفوظ ہیں، نہ ان کی پارٹی محفوظ ہے، نہ پاکستان کا کوئی سلامتی کا ادارہ محفوظ ہے، نہ پاکستان کی عدالتیں محفوظ ہیں. تو میں حیران ہوں کہ سیاسی چڑیلیں بھی اب جادو ٹونے کے اوپر تانے دے رہے ہیں. چلیں کوئی عام شخص تانا دے، سمجھ آتی ہے. آپ تو خود بہت سارے لوگوں کے جس بیچارے کی کوئی ویڈیو کہیں پہ ہوگی اس کو فکر ہے کہ وہ ویڈیو آپ کی آرکائیو میں پڑی ہوئی ہے. آپ نے تو خود ایسا شریانتر رچا ہے اس ملک کے اندر کہ کوئی آپ کے شر سے محفوظ نہیں ہے. ہر عزت دار شخص چھپتا پھر رہا ہے کہ کہیں آپ اپنوں کی بھی ویڈیو نکال دیتے ہیں، مخالفین کی بھی ویڈیو نکال دیتے ہیں. تو یہ جادو ٹونے کے باتیں، جنات کی، پریوں کی باتیں آپ ہمیں نہ سنائیں، آپ کے منہ سے اچھی نہیں لگتی یہ. آپ کوئی چڑیلوں کی بات کریں، آپ کسی اژدہے کی بات کریں، کسی دیو کی بات کریں جو کوئی آپ سے پورا پڑ سکے آپ کے شر میں. تو آپ نے دوسری بات کہی کہ نواز شریف بننے کی کوشش نہ کریں. میں آپ کی زیادہ تر باتوں سے اکثر متفق نہیں ہوتا، لیکن میں آپ کی اس بات سے مکمل طور پر متفق ہوں. کوئی شخص بھی پوری کوشش کر کے نواز شریف نہیں بن سکتا، کیونکہ نواز شریف بنا نہیں جا سکتا، نواز شریف پیدا ہوتا ہے. پوری کوشش کر کے بھی اس قدر جھوٹا، مکار، بددیانت، وعدہ فروش، ملک فروش، وطن فروش، اس طرح کا انسان کوئی کوشش کر کے بھی کیسے بن سکتا ہے؟ آپ کے اندر کا ضمیر کہیں تو زور مارے گا. یہ تو مینوفیکچرنگ ہی ایسی ہوگی تو کامیابی ہوگی. تو محترمہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ نواز شریف بننے کی کوشش نہ کی جائے، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے. نواز شریف جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں لیکن روز روز پیدا نہیں ہوتے. میں آپ کو بتاؤں، پہلی دفعہ نواز شریف پیدا ہوئے تھے ہسٹری کے اندر 5 فروری 1765 کو. کب پیدا ہوئے تھے نواز شریف پہلی دفعہ؟ 5 فروری 1765 کو پہلی دفعہ نواز شریف پیدا ہوئے تھے. اور انہوں نے دھوکہ دیا تھا سراج الدولہ کو، اور نام تھا ان کا میر جعفر. اس ٹائم یہ میر جعفر کے نام سے پیدا ہوئے تھے. اور جیسے نواز شریف صاحب کی بھی ایک ریت ہے کہ انہوں نے، آپ دیکھیے، جنیجو صاحب سے شروع کر کے پہلے ضیاء الحق
साहब के साथ उनकी शनासाई थी, उनके साथ रहते हुए जनेजो साहब को धोखा दिया, फिर बाद में ज़िया-उल हक को भी धोखा दिया उनकी मौत के बाद, फिर मियां अजहर साहब, फिर चलते जाए चौधरी बरादरान। तो इसी तरह जो मीर जाफर थे, उन्होंने भी एक धोखे पे सिराजुद्दौला को धोखा देकर बस नहीं किया। उन्होंने पहले अपना ईमान, जैसे आज नवाज शरीफ साहब ब्रिटिश जाके बैठे हुए हैं इंग्लैंड में सारा माल पानी चोरी करके, उन्होंने भी अपनी तमाम तर वफादारियां ब्रिटिशर्स के हाथ में दी। और उसके बाद दूसरा धोखा ब्रिटिशर्स को दिया जब उन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक मुआहदा कर लिया चोरी होके, जो बाद में पता चल गया और उनका वही अंजाम हुआ जो नवाज शरीफ का हुआ। फिर दूसरी दफा नवाज शरीफ फिर पैदा हुए, और वो पैदा हुए 1799 में, सियासी तौर पर फिर पैदा हुए। 1799 में वो मीर सादिक के नाम से पैदा हुए। इस दफा इंतखाब था टीपू सुल्तान धोखा देने के लिए, उन्होंने मैसूर में उन्हें धोखा दिया और जिससे वो शहीद हुए। और आज हिस्ट्री की किताबें जो हैं वो लिखी हुई हैं, सबको पता है। और पूरे 200 साल बाद अल्लाह का काम देखिए, 1799 और 1999 फिर नवाज शरीफ साहब ने इस मुल्क की सलामती के ऊपर उस टाइम शबखून मारा, जब मुल्क के एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुल्क से बाहर थे और उनको हवाओं के अंदर सैक किया गया। वही हरकत जो 200 साल पहले वाले नवाज शरीफ ने वही इन्होंने की। तो मोहतरमा, आपकी बात दुरुस्त है, नवाज शरीफ बना नहीं जा सकता, नवाज शरीफ वाकई पैदा हुआ जा सकता है, और वो कुछ 200 साल बाद नवाज शरीफ पैदा होते हैं। और मेरा नहीं ख्याल अगले आने वाले 200 साल में कोई और नवाज शरीफ पैदा होने वाला है, क्योंकि इसका बोझ जो है ना वो पूरी उम्मत मुसलमा को उठाना पड़ता है, और अभी भी उठा रही है। कलभूषण से लेके आप कसाब से लेके आप अफगानिस्तान के इश्यूज अल्हम्दुलिल्लाह से लेके आप ये सारी चीजें देख लें, आपको नजर आएगा कि ये जो आज का मीर जाफर मीर सादिक है, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह नहीं है, पूरी उम्मत मुसलमा के लिए ये शख्स है। आप देखिए जो इनके मौसन थे, जो इन्हें यहां से लेके गए थे, उन पे झूठे बहतान किए, उन्हें यहां आना पड़ा बताने के लिए कि ये झूठ बोल रहे हैं। अब मैं वापस आता हूं, जो मोहतरमा ने आज अदालत में अपने आप को फेस किया और वही झूठ दोबारा बोले जो वो हमेशा बोलती हैं, और जो एक सच उनसे पूछा जा रहा है, एक दफा बोलना है सिर्फ 2 मिनट के लिए, और हमेशा के लिए अदालतों से भी बाइज्जत बरी, बल्कि उल्टा पूरी कौम हमें बुरा भला कहेगी। और वो सच क्या बोलना है? एक कागज देना है जो आप सबके पास, किराए पे घर हो तब भी किरायानामा होता है, खरीदा हो तो तब भी आपके पास रसीद होती है। वो रसीद देनी है कि अपार्टमेंट यहां से खरीदे, वो नहीं बताती। कतरी खत, जाली ट्रस्ट डीड, कैलबरी फॉन्ट, और अब जिन्नात और चुड़ैलों और टोने के ऊपर बातें होती हैं। ओ भाई, आप चले हमें यही बता दें कि ये जो आपका पैसा गया था, ये किन जिन्नात ने वहां मुंतकिल किया था? अगर आप जिन्नात की बात करती हैं, ये कौन सी चुड़ैलें थी जिन्होंने दिन रात मेहनत करके ये अपार्टमेंट आपके वालिद साहब को और आपको बना के दिए थे? हमें ये बता दीजिए कि क्या आपके घर के तहखाने के अंदर कोई जिन्नात या चुड़ैलें डॉलर छाप रही थी जिनसे आपने ये अपार्टमेंट ली? चलें यही बता दीजिए, आज आपने ये जिक्र शुरू कर दिए। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक गिलास हाथ में लेके फिरें और आपको लगता है गिलास पकड़ने से बंदे के हाथ में वजीर आजम की कुर्सी आ जाती है। वजीर आजम की कुर्सी जामे शीरी का शरबत नहीं है कि आप डालें, थोड़ी सी चीनी डालें और उस गिलास के अंदर घोलें और पी लें। ऐसा नहीं होना। वो सिर्फ टीवी में कमर्शियल में होता है कि नीडो दूध पी के बच्चा उसी टाइम बड़ा हो जाता है। ये आप वाले ग्लास में से बच्चा इतनी जल्दी बड़ा नहीं होना, बच्चे को पहले बताना पड़ना है। हमारी बहन जो है, जो सियासी बच्ची हैं, इन्हें पहले बताना पड़ना है कि किन चुड़ैलों, किन जिन्नों के थ्रू ये पैसा बाहर गया और ये अपार्टमेंट खरीदे गए। तो लोगों के मजहबी अकायद की तरफ ना जाएं, उस तरफ आप जाएंगे तो इसी वजीर आजम हाउस में आप बैठते रहे हैं और आप भी बैठती रही हैं। और अभी भी वजीर आजम हाउस में ऐसे एम्प्लॉइज मौजूद हैं जो आपके वालिद साहब की पहले वजारत उज़्मा के टाइम पर भी वहां काम कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। तो वहां पर भी जिन्नात और चुड़ैलों के जो चर्चे हैं, जो किस्से हैं, वो बहुत मौजूद हैं। और जब कभी फारिग वक्त होता है
प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग्स खत्म हो जाएं तो वो हम सुनते हैं उनसे बैठ के। तो आप सियासत पे रहिए, इन चीजों में मत जाइए, अपनी अपार्टमेंट्स की जो रसीदें हैं वो दीजिए। और तीसरी बात बार बार कही गई कि पूरा मुल्क बंद है। अगर पूरा मुल्क बंद था तो आज आप स्विट्जरलैंड की अदालत में हाजिर हो रही थी। अगर मैं गलत नहीं, ये कोई पाकिस्तानी अदालत ही थी। अगर पूरा मुल्क बंद था तो सामने आपके डच मीडिया खड़ा था। मुझे तो लग रहा है यही जियो टीवी, ARY, समा, 92, यही चैनल थे सारे, GNN। तो मीडिया भी चल रहा है पाकिस्तान का आजाद। आप उनके सामने अपना षड्यंत्र भी पूरा बयान कर रही हैं और अदालत भी चल रही है जिसमें आप झूठ बोल रही हैं। तो फिर मुल्क कौन सा बंद है? तो आप लोगों ने हमेशा पाकिस्तान के सलामती के इदारों के ऊपर हमला किया। और आपको दूसरी बात आज आपने कहा कि शहीद बनने नहीं दिया जाएगा। आप लोगों ने हमेशा बेवकूफ बनाया और आप लोग हमेशा खुद करप्ट और चोर बने। तो आपको शायद यह नहीं पता कि करप्ट और चोर बना जा सकता है, बेवकूफ बनाया जा सकता है, शहीद बना नहीं जाता, शहीद हुआ जाता है। तो शहीद के लफ्ज की इस तरीके से तौहीन मत करें। शहीद खून दे के बनना पड़ता है। आपके वालिद साहब की तरह किसी जानवर के खून को मुहैया करके उसके प्लेटलेट्स बना के उसकी जाली रिपोर्ट के साथ यहां से बाहर नहीं जाया जाता। आपको शहीद बनने के लिए अपनी जिंदगी देनी पड़ती है। आपको शहीद देने के लिए अपनी मां के सपने देने पड़ते हैं। आपको शहीद बनने के लिए अपनी बहन की आंखें हमेशा के लिए तरसा के जाना पड़ता है। आपको शहीद बनने के लिए अपने छोटे छोटे बच्चों के सर से साया उठाना पड़ता है। आपको शहीद बनने के लिए अपना पूरी फैमिली, अपनी कौम को सुपुर्द करके अपनी सबसे कीमती चीज जो आपकी जान होती है वो निछावर करनी पड़ती है। तो आप अपनी इस तरह की सियासी बहस में बराए मेहरबानी शहीद जैसे लफ्ज को ना लाएं। शहीद बना नहीं जाता, शहीद होना पड़ता है और उसके लिए कुर्बानी की जरूरत होती है, ईमानदारी की जरूरत होती है। तो आप अगली पेशी पे जब आएं तो हम आपसे दो में से एक जवाब सुनना चाहते हैं। या तो आप बताइए कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, एक झूठ था और आपकी ये प्रॉपर्टीज हैं, और या आप कहिए नहीं वो सच था और मेरी ये प्रॉपर्टीज नहीं है और ये मेरे सबूत हैं। दो में से एक बात करें, बात खत्म। आपके सवाल आज जाफर साहब APP से। मुआवन खुसरी शहबाज गिल, वज़ीर ममलिकत ज़रताज गुल और पार्लिमानी सेक्रेटरी मलिका बुखारी इस्लामाबाद में इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सहाफ़ियों के सवालों के जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि शरीफ ख़ानदान ने हमेशा मुखालिफिन पर बहतानबाजी की है, उनके शर से कोई महफूज नहीं है।